Hello class, 10th subject chemistry. We were doing the chapter number 2, acids, bases and salts. Now we were doing the properties of acids. What properties of acids we have learned yet were that acids have sour taste, it turns blue litmus to red, then it conducts electricity. Then we have learnt that acids on reacting with metals gives salt plus hydrogen gas. We have learned yet, right? The fifth type of equation was when acids reacts with metal carbonates, then salts plus water plus carbon dioxide is formed. Again in this equation it was acid can even react with metal hydrogen carbonates. Here again salts plus water plus carbon dioxide was formed. As you all know that these 5 types of reaction we have done in details, right? We have done each and every reaction that we have reacted acids with some sort of metals to form that salt and hydrogen. We have reacted many metal carbonates with acids and metal hydrogen carbonates with acids even, so that we have got salts plus water plus carbon dioxide. Now the sixth sort of equation is when acid reacts with a base. What happens when acid reacts with a base? For this, as you all know that these equations were also made. So let's make an equation. Let it be an acid is HCl and it reacts with a base NaOH. What will be the answer now? Look here. H positive, Cl negative, Na positive, OH negative is being formed here. That means it's some sort of A, B plus C, D, which means it's a double displacement reaction. And the answers of double displacement reactions were, this was plus minus, plus minus. C goes with B and A goes with D. Here again same thing is going to happen. H is going with OH negative. Now as I have told you many times that H positive and OH negative is going to give you H2O. Yes, very good. Memorize the topic that we have learned in double displacement reaction, that H positive and OH negative gives H2O, as H2O when dissociates gives H positive and OH negative. So H positive and OH negative on uniting it will form H2O plus Na and Cl will give you NaCl. So what two products are formed? First product which is formed is a salt and the second product formed is water. So you can say when acid reacts with a base, so salt plus water is formed. As salt plus water is formed when acid reacts with a base, now this salt is neither acidic nor basic. ना ही ये acidic है ना ही ये basic है बच्चे. तो ऐसी सॉल्ट जो ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, तो उस समय पर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो रिएक्शन थी, उस रिएक्शन का नाम क्या है? उस रिएक्शन का नाम है, ध्यान से देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. What's the name of the reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये आपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 लास्ट में जाके जो डेंटल केरीज वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि हम टूथब्रश जो है उसके ऊपर पेस्ट लगाते हैं, राइट?
तो क्यों लगाते हैं? कुछ याद आ रहा है? हमारे माउथ में क्या होते हैं? एसिड रिलीजिंग बैक्टीरियाज निकलते हैं, राइट, जो शुगर वगैरह को खाने के लिए निकलते हैं। उसके ऊपर हम जब टूथपेस्ट लगाते हैं तो हमने बोला था कि न्यूट्रल हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। रिएक्शन होता क्या है? ये जो एसिड है और टूथपेस्ट में क्या होगा? बेस। दैट मीन एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसलिए न्यूट्रल हो रहा था वो रिएक्शन, न्यूट्रल हो रहा था। ना एसिड का अपना काम हो पाता है, ना बेस का अपना काम हो पाता है। कब? जब एसिड के साथ बेस हो या बेस के साथ एसिड हो। ये याद रखना है आपने। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 7th टाइप. This was the 6th type. Now moving on to the 7th type of equation. What is the 7th type of equation? 7th type of equation is metal oxide when reacted with acids. मेटल ऑक्साइड को हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। एसिड्स के साथ इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टीज ही हम एसिड्स की पढ़ रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराना तो जवाब क्या निकलेगा? हम अभी जवाब नहीं लिखेंगे, यू नो दैट। हम सॉल्व करते हैं फिर हम जवाब की तरफ जाते हैं ना। तो चलिए मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एक ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव होगा, और मेटल का मतलब कोई भी Na+1 हो सकता है, Ca+2 हो सकता है, तो कोई भी हो सकती है, Cu+2 भी हो सकता है। लेट इट बी, हम आपकी अकॉर्डिंगली कुछ Cu+2 और O-2, दैट मीन CuO बना के चलते हैं। हमारे पास मेटल ऑक्साइड कौन सा आ गया? CuO प्लस एसिड ले रहे हैं हम, तो हम HCl ले लेते हैं, एसिड। फाइन, तो क्या होगा? अब ये देखिए, ये H और Cl कैटाइंस एनाइंस बनाइए। Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड Cl-1। तो फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। Cu किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा? CuCl। ये था 2, ये Cu कितने का था? 2, और Cl कितने का था? 1। तो 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CuCl2। और H किसके साथ जाएगा? O के साथ। तो H1 का है, O2 का है, H1 का है, O2 का है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? H2O। तो अब बताइए क्या बना आपके पास? सॉल्ट बनी प्लस क्या बना? H2O। H2O क्या है? H2 है वाटर। सो जब भी आप मेटल ऑक्साइड के साथ भी एसिड को रिएक्ट कराएं तो क्या बनती है? सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। ओके, सो मेटल ऑक्साइड हो तो भी यही बनेगा। अब आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, बस थोड़ा सा करके लिख दिया हुआ है, बट हम इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इसकी, अगर आप मेटल हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, सपोज वट यू आर टेकिंग मेटल हाइड्रोक्साइड नाउ। तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर आप एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होने वाला है? मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा? लेट अस चेक हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट इट बी, मेटल है Cu और हाइड्रोक्साइड आपको पता है OH-1 होता है, तो ये 2 होगा, तो इधर आ जाएगा 2। तो क्या बन जाएगा? CuOH ट्वाइस। कंसेप्ट 9th क्लास वाला, फॉर्मूला बनाने वाला। HCl बनाना है, उसके साथ रिएक्शन होगा, तो इसमें से पहले हम कैटाइंस एनाइंस सेपरेट करके दिमाग में माइंड मैप तो बनाए। Cu+2 OH-1 H+1 Cl-1। तो अब पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, इधर का पॉजिटिव उधर के नेगेटिव के साथ, तो Cu जाएगा Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा? CuCl2 हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि 2 था और 1 था, 2 इधर 1 इधर। H जाएगा OH के साथ, तो क्या बन जाएगा? H2O। क्या करवाया था अभी मैंने कि अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़े तो बनता है H2O। तो जब ये टूटे तो क्या बनता है? तो बनता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो वही बात है ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिले तो क्या बन गया? H2O। अब बताइए ये दोनों क्या थे? ये कौन सी चीजें थी? ये थी एक सॉल्ट और ये क्या था? वाटर। तो आप याद रखना, मेटल ऑक्साइड हो चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड हो, एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। फाइन। अब 8th पॉइंट जो है उसमें है आपके पास कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स आर करोसिव इन नेचर। मेटल्स जो हैं उनका नेचर करोसिव है। करोसिव मतलब क्या होता है? करोसिव मतलब होता है बेटा कि करोजन करता है। अब करोजन फर्स्ट चैप्टर में किया था, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, राइट। तो क्या करता है ये? याद रखिएगा, इट बर्न्स योर स्किन, बर्न्स ऑन द स्किन छोड़ देगा। ओके, देन अटैक्स एंड ईट अप द मेटल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था।
हो सकता है मेटल के साथ साथ कोई वुड हो, या हो सकता है क्लॉथ हो, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसको खराबी दी जा सकती है। ओके, तो मेटल्स को स्टोर करना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? Acids are corrosive. This was our topic. So next is कि हमारे पास अगर strong base हो, like suppose हमारे पास कोई strong base चल रहा है। strong base कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, NaOH हो सकता है एक strong base। ओके, ये भी बहुत corrosive होते हैं। सिर्फ एसिड्स ही corrosive नहीं होते, strong base भी बहुत ज़्यादा corrosive होते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके साथ आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड वाला टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फाइन। सो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की? लेट्स रिकैप्चुरेट। फर्स्ट इज इट्स हैविंग अ सॉर टेस्ट। सेकेंड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, एसिड प्लस मेटल्स गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। Fifth, acid plus metal carbonates or acid plus metal hydrogen carbonates gives salt plus water plus carbon dioxide. Or same here, when hydrogen carbonates is reacting with acids, salt plus water plus carbon dioxide. Then acid plus base gives salt plus water. This reaction is known as neutralization reaction. Next is metal oxide plus acid gives salt plus water. Metal hydroxide plus acid also gives salt plus water. Acids are very corrosive in nature, and same is for strong base. Okay, and else what we have learnt during these topics were the test for what? Test for hydrogen gas presence and test for carbon dioxide gas presence. For hydrogen gas presence, the test was very simple. The test was that it gives pop sound. Pop sound निकलती है, कब निकलती है? When burning splinter is brought near to it. Very good. You know the answer, right? Burning splinter is brought near to it. But आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में एक तो होता है extinguishes fire और एक होता है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इस दौरान क्या होगा? जो लाइम वाटर मिल्की होने वाला केस है उस दौरान क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की होने वाले केस के दौरान क्या होता है? लाइम वाटर मीन्स, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द सेकेंड पॉइंट। लाइम वाटर मीन्स CaOH twice. When carbon dioxide is passed through it plus carbon dioxide, it would give calcium carbonate plus water. This calcium carbonate is milky in nature. It's whitish in color. Okay, this is the white PPT. What was PPT? Precipitate. If it's white in color, that means it has turned milky. Again, this was for a short time, but at considerable time, अगर कंसिडरेबल टाइम के लिए, थोड़े और समय के लिए ये काम किया जाए, दिस वॉज फॉर शॉर्ट टाइम। तो अगर आप कंसिडरेबल टाइम के लिए काम कर रहे हैं, फॉर कंसिडरेबल टाइम काम करते हो, तो क्या होता है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है प्लस वाटर है, ये जो टेस्ट ट्यूब में बना हुआ है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि अब CaOH ट्वाइस तो खत्म हो रहा है, लाइम वाटर खत्म हो रहा है, लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके CaCO3 प्लस H2O बना रही है। अब टेस्ट ट्यूब में यही है, तो इसके साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेगी, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड तो पास करवाते जा रहे हैं फॉर कंसिडरेबल टाइम, तो बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस। What is this? This is calcium hydrogen carbonate, which is the clear solution. That means पहले लाइम वाटर क्लियर था, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो व्हाइट मिल्की पीपीटी बना, प्रेसिपिटेट बना, फिर उसमें से और दोबारा से पास कराओगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा? दोबारा से वो क्लियर सोल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए आपको पेज नंबर 58 अपनी बुक्स पे देखना पड़ेगा, जिसमें आपको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बताया गया है क्लियर लाइम वाटर, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जा रही है। दूसरे में आपको बताया गया है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। अब मिल्की क्यों हो गया?
अब हुआ क्या, ये था लाइम वाटर, इस लाइम वाटर में क्या था, इस लाइम वाटर में था सिर्फ CaOH ट्वाइस, राइट, क्या था CaOH ट्वाइस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा रहे हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब और साथ में क्या बना हुआ है, वाटर। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करवाई जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस। क्या बन जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। फाइन। तो ऐसे करना होता है कि हमें सपोज सोडियम कार्बोनेट ले लिया, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, उसमें से गैस निकल रही है, हमें पता है, ओके फाइन। गैस जो निकली हमने उसको अलग से लाइम वाटर की टेस्ट ट्यूब में डालना शुरू कर दिया। एंड अगर ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाए दैट मीन्स ये गैस कौन सी थी, ये गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, अब याद रखना हमारे पास अगर बेकिंग सोडा हो तो हम रेमेडी यूज कर सकते हैं। रेमेडी मतलब हम ओवर ईटिंग अगर की हो तो हम एसिडिटी से बच सकते हैं। एसिडिटी दैट मीन्स एसिड ज्यादा हो गया, हम बेकिंग सोडा लेते हैं तो बेकिंग सोडा जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वो बेस है। याद आ रहा है कुछ, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम केमिकल कंपाउंड है। कौन से कैल्शियम कार्बोनेट की। एग शेल्स में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको ना रिएक्शन करने को बोल देते हैं। क्या रिएक्शन करने को बोल देते हैं, आपको बोल देते हैं एग शेल के ऊपर एसिड डाला है तो क्या होगा। तो याद होना चाहिए एग शेल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के ऊपर एसिड डाला है तो क्या बनेगी, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपको याद रखना है कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, साथ में सॉल्ट बन रही है और साथ में वाटर बनेगा। ये आपको याद रखना है। Is it clear to you all? So you are going to memorize what you are going to memorize each and every point of these properties of acids. I hope so. It's very much clear to you all, right? Thank you so much, students.